ہم بنگلے کے پاس پہنچے تو افتخار صاحب نے کچھ دیر تک گہری نظروں سے آس پاس کا جائزہ لیا اور پھر دیوار سے ٹیک لگانے کے بعد اپنا دایاں ہاتھ پیچھے لے جا کر اینٹ دبا دی۔ انہوں نے یہ اتنی صفائی سے کیا تھا کہ چند گز کے فاصلے پر موجود کوئی نگرانی کرنے والا بھی ان کی کارروائی نہ بھانپ پاتا۔ ان کے اشارے پر میں نے دیوار میں بننے والے کھانچے میں پاؤں پھنسایا اور دیوار پر پہنچ گیا۔ دوسری طرف اترنے کی بجائے میں نے دیوار پر بیٹھ کر افتخار صاحب کی ہدایت کے مطابق ایک بار پھر گہری نظروں سے آس پاس کا جائزہ لیا اور کوئی مشکوک سرگرمی مشاہدے میں نہ آنے پر افتخار صاحب کو میدان صاف ہونے کا سگنل دے کر احاطے میں اتر گیا۔ کچھ ہی دیر میں افتخار محمود بھی میرے پاس پہنچ گئے۔ ان کے اشارے پر میں نے ابھری ہوئی اینٹ دیوار میں دھکیلی اور ہم بنگلے کی عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ افتخار صاحب کسی گہری سوچ میں تھے، لہٰذا میں بھی کچھ کہنے کی بجائے چپ چاپ ان کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ بغلی زینے کے قریب پہنچ کر وہ ٹھہر گئے اور وقفے سے 3 مرتبہ نہایت ماہرانہ انداز میں الو کی آواز نکالی۔ میرے لیے سمجھنا مشکل نہ تھا کہ اسلم علی نے کوئل کی کوک کا سگنل صرف میرے لیے مقرر کیا ہوگا۔ ہمیں بہت تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا۔ ہمیں اوپر چھوٹی سی راہداری میں دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز سنائی تھی۔ افتخار محمود نے مجھے اپنے پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور زینہ چڑھنے لگے۔ راہداری میں پہنچ کر انہوں نے مجھے خاموشی سے وہیں کھڑا رہنے کا اشارہ کیا اور خود دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ میں نے دروازہ اندر سے بند ہونے کی آواز سنی۔ مجھے لگ بھگ 10 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ بالآخر دروازہ کھلا اور اسلم علی باہر نکلا اور تھکے تھکے سے لہجے میں بولا، اندر چلو بھیا۔ میں اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے میک اپ زدہ چہرے پر بھی تناؤ کی کیفیت نظر آئی۔ سامنے کرسی پر شکل سے جنوبی ہندوستان کا باشندہ دکھائی دینے والا ایک ادھیڑ عمر شخص براجمان تھا۔ اگر میں پہلے سے واقف نہ ہوتا تو افتخار محمود کی حیثیت سے اسے پہچاننا لگ بھگ ناممکن تھا۔ پیشانی پر موجود سلوٹیں بتا رہی تھیں کہ اس کا مزاج برہم ہے۔ میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اسلم علی کو کافی گرم سرد باتیں سننی پڑی ہیں۔ میں چپ چاپ مسہری پر جا بیٹھا۔ افتخار صاحب نے جلد ہی اپنے مزاج کی برہمی پر قابو پا لیا اور نرم لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے۔ بولے، اب ذرا تفصیل سے بتاؤ بھیا جمال کے اتنے عرصے سے کہاں غائب تھے اور کیا کیا کرتے پھر رہے تھے؟ میں نے کہا، میں نے وہ سب احوال تحریری شکل میں آپ تک پہنچانے کے لیے بڑی محنت سے قلم بند کیا ہے۔ اسلم بھیا سے وہ ڈائری لے کر پڑھ لیں، مزید کچھ پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں۔ اسلم علی میری بات پوری ہوتے ہوتے مذکورہ ڈائری نکال کر افتخار محمود کو تھما چکا تھا۔ انہوں نے نہایت پرشوق انداز میں ڈائری کا مطالعہ شروع کیا اور لگ بھگ فوراً ہی میں نے ان کے چہرے پر جوش و خروش کے آثار دیکھے۔ کچھ دیر بعد وہ باقاعدہ چونکے اور ڈائری سے نظریں ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ مجھے لگا وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، مگر وہ فوراً ہی ایک بار پھر ڈائری کے مطالعے میں ڈوب گئے۔ وہ نہایت محویت سے میری تحریر پڑھ رہے تھے، مگر درمیان میں بار بار کبھی ہیجان کبھی مسرت کے تاثرات ان کے چہرے پر عیاں ہوتے۔ وہ گاہے تعجب اور گاہے ستائش بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے اور ایک بار پھر ڈائری کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ بالآخر انہوں نے ڈائری کا آخری تحریر شدہ ورق بھی پڑھ لیا۔ انہوں نے ڈائری بغلی میز پر رکھ دی اور مراقبے کے انداز سے آنکھیں بند کر لیں۔ بالآخر انہوں نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور کئی ثانیوں تک یک ٹک میرا چہرہ دیکھتے رہے۔ انہوں نے ایک گہری سانس کھینچی اور پھر اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے گرم جوشی سے مجھے سینے سے لپٹا لیا اور بھرائے ہوئے سے لہجے میں بولے، ناقابل یقین، مجھے تو تم جادوگر لگتے ہو لڑکے۔ حلفیہ کہتا ہوں کہ اگر پہلے سے تمہارا ریکارڈ معلوم نہ ہوتا تو میں کہتا کہ تم نے من گھڑت جاسوسی ناول لکھ ڈالا ہے۔ خصوصاً یہ یورینیم کی کان والا کارنامہ تو تہلکہ خیز ہے۔ میں نے موقع مناسب جان کر اپنے ذہن میں موجود سوال پوچھ لیا۔ کہا، سر، اس رپورٹ کے مطابق یہ انڈیا کی دریافت کردہ یورینیم کی دوسری کانیں ہیں۔ کیا ہماری حکومت پہلے بھی اس حوالے سے معلومات رکھتی ہے؟ افتخار صاحب نے میری بات سن کر نفی میں سر ہلایا۔ بولے، جہاں تک مجھے علم ہے اس سے پہلے ایسا کوئی انکشاف نہیں ہوا، اس لیے یہ اطلاع دارالحکومت پہنچے گی تو ایوان صدر میں بھی زوردار دھماکہ ہوگا۔ یہ بلا شبہ انتہائی تشویشناک خبر ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کی سلامتی کو لاحق خطرات مزید سنگین ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان تمام انکشافات سے ظاہر ہے کہ دشمن اپنا اکھنڈ بھارت کا سپنا سچ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اور اگر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تو ہمارے ملک کو صفحہ ہستی سے مٹانے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ افتخار محمود صاحب نے کہا، اس سنگین حقیقت سے ہم بخوبی آگاہ ہیں، مگر دشمن کی بدقسمتی یہ ہے کہ اسے ایک ایسی قوم کا سامنا ہے
जो अपने वतन की सलामती की खातिर मौत का खुले बाजुओं के साथ इस्तकबाल करने को तैयार रहती है। हमारी सरजमीन की तरफ तिरछी आंख से देखना पंडित नेहरू और उसकी बेटी को बहुत महंगा पड़ सकता है। इफ्तिखार साहब के लहजे से हुब्बुल वतनी आया थी। माहौल जज्बात से बोझल होने की वजह से कमरे में खामोशी छा गई। कुछ देर के बाद इफ्तिखार साहब ने ही गुफ्तगू की बागडोर संभाली। बोले, छोटे भाई, तुम जो कर आए हो और जो कुछ साथ ले आए हो मेरी तवक्को और अंदाजों से ज्यादा तबाहकुन और धमाका खेज है। इतना हसास और आतिशगीर के इन अशिया की जहां मौजूदगी का इल्म होने पर दुश्मन टैंकों, तोपों और जंगी तैयारों के साथ यलगार कर दे। बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये सब अशिया दोनों ममालिक में झड़प का बायस बन सकती हैं। और मुझे लगता है तुमने श्रीनगर में जो मालूमात इकट्ठी की हैं उनके नतीजे में इंडिया को चीन से लद्दाख और तिब्बत में इंशाअल्लाह जबरदस्त मार पड़ने वाली है। आखिरी जुमला कहते कहते इफ्तिखार साहब का लहजा काफी खुशगवार हो गया। फिर उन्होंने एक अलग तरह की दिलचस्पी से मुझे देखा और मानी खेज लहजे में पूछा, यार एक बात बताओगे? मैंने उनका लहजा बदलते देखा तो चौंक कर उनकी तरफ देखा। कहा, आप हुक्म करें सरकार, आपको इजाजत तलब करने की क्या जरूरत है? उन्होंने अपनी मुस्कुराहट दबाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हें बहुत मुख्तसर वक्त में बस लाजमी तरबियत दी गई थी, मगर हम में से किसी ने आज तक इस तरह के अनोखे हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए जो तुम पहले बम्बई में सचिन और श्रीनगर में एयर मार्शल एसपी इंजीनियर के खिलाफ निहायत कामयाबी से इस्तेमाल कर चुके हो। सच सच बताना, ये सब तुमने कहाँ से सीखा है छोटे भैया? इफ्तिखार महमूद जैसे कोहना मश्क शख्स की तरफ से इस अंदाज में तारीफ सुनकर मैं कुछ महजूब सा हुआ, मगर उनके इस्तफसार का जवाब देना नागुज़ीर था। मैंने धीमे धीमे लहजे में कहा, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता सरकार, मगर इब्ने सफी के तहरीर करदा तमाम नॉवल पढ़े हैं। गैर मुल्की जासूसी अदब में अगाथा क्रिस्टी, सर आर्थर कॉनन डॉयल और जोसेफ कॉनरैड वगैरह को भी पढ़ा है। इंग्लिश फिल्में बेशुमार देखी हैं। शायद उन सब ने गैर महसूस तौर पर दिमाग को इस तरह सोचना और मौका महल के मुताबिक तरकीबें लड़ाना सिखा दिया है। मेरी बात सुनकर इफ्तिखार महमूद मुस्कुराए। बोले, यकीन करो भैया, हम भी इन सब जासूसी किताबों और फिल्मों के दिलदादा हैं, मगर खैर तुमने यहाँ पहुँचने के बाद ही हमें जता दिया था कि तुम कोई मामूली हस्ती नहीं हो। वो कुछ देर के लिए खामोश हुए और फिर उनके चेहरे पर रफ्ता रफ्ता एक बार फिर संजीदगी छा गई। इस मर्तबा वो बोले तो उनका लहजा पहले से भी ज्यादा गंभीर था। बोले, मगर अब हमें तुम्हारी मेहनत और जांफशानी से सरंजाम दिए कारनामों के हासिल इस अनमोल खजाने की हिफाजत और जल्द अज जल्द दिल्ली और फिर महफूज तरीके से वतन मुंतकिली का कठिन इम्तिहान दरपेश है। पहले मेरा ख्याल था कि इन्हें 2-4 हफ्ते तक यही रहने दिया जाए, मगर ये मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा अहम और खतरनाक है। हम इन्हें ज्यादा दिन अपने पास रखने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमें इन्हें जल्द अज जल्द यहाँ से मुंतकिल करना पड़ेगा और तुम्हें भी यहाँ से गायब करना होगा। वो अभी यहीं पहुंचे थे कि कमरे में अचानक सीटी की आवाज गूंजी। मुझे लगा वो आवाज सुनते ही उन दोनों को बैक वक्त बिजली का झटका लगा है। उन दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। असलम अली मुझे कुछ बताने ही वाला था कि मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, अलार्म! कोई दीवार फलांग कर अहाते में दाखिल हो रहा है। इफ्तिखार महमूद ने मेरी तायद की और हैजान भरे लहजे में असलम को हुक्म दिया, जल्दी से राइफलें निकालो और तुम्हारी दूरबीन और टॉर्च कहाँ है? असलम ने गंभीर लहजे में कहा, दोनों राइफलें मसहरी के नीचे और लोड हालत में हैं। टॉर्च मेरी जेब में है, दूरबीन अभी ले आता हूँ। ये कहकर वो तेजी से साथ वाले कमरे में चला गया। मैं तेजी से झुका और अपनी मसहरी के नीचे मौजूद दोनों राइफलें और गोलियों वाला बक्स निकाल कर मसहरी पर रख दिया। इस दौरान में असलम अली भी दूरबीन समेत वापस लौट आया था। इफ्तिखार महमूद दूरबीन लिए कमरे की दीवार की तरफ बढ़े। उन्होंने असलम अली को इशारा करके कमरे का कुमकुमा बंद करवाया और फिर पर्दा खींचकर एक तरफ कर दिया। एक खिड़की हमारे सामने थी जिस पर शीशे मौजूद थे। उन्होंने दूरबीन से बाहर देखते हुए संजीदा लहजे में कहा, ये जो भी है यहाँ यकीनन हमारा ताक़ुब करते हुए यहाँ पहुँचे हैं और उसी तरफ से अंदर दाखिल हो रहे होंगे। खुदा करे ये कोई चोर उचक्के हों। इंडियन खुफिया एजेंट हुए तो मामला बेहद संगीन हो जाएगा। उन्होंने कुछ ही सानियों के बाद कहा, वो रहे, वो दो हैं और तकरीबन उसी जगह से दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए हैं जहाँ अलार्म बंद करने का मैकेनिज्म है। यानी ये वाकई हमारा ताक़ुब करते हुए यहाँ पहुँचे हैं और इन्होंने हमें दीवार फलांग कर अंदर होते देख लिया है। मैंने अपना इस्तराब काबू में रखने की हद्दुल इम्कान कोशिश करते हुए पूछा, ये कैसे पता चलेगा कि ये कोई चोर उचक्के हैं या खुफिया वाले? इफ्तिखार महमूद ने दूरबीन मुझे थमाते हुए कहा, पहले तो ये पता लगाना होगा कि ये दो ही हैं या इनके साथ मजीद लोग हैं। इस दौरान में मेरी नजरें दूरबीन की मदद से अहाते का जायजा लेने में मसरूफ थी। ताकतवर अदसों की मदद से बाहर छाई तारीकी फीकी पड़ गई थी
और इफ्तिखार महमूद की बताई हुई समत देखते ही मुझे दो अफराद के खासे नुमायां हयूले नजर आ गए थे। उनमें से दूसरा मेरी नजरों के सामने ही दीवार से कूदा था और अब वो दोनों अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इर्द गिर्द का जायजा लेने की कोशिश कर रहे थे। मैंने बगौर जायजा लेने के बाद कहा, बज़ाहिर ये दो ही दिखाई दे रहे हैं, इनके हाथों में मुझे कोई हथियार नजर नहीं आ रहा है। इफ्तिखार महमूद साहब ने कहा, अगर ये सिर्फ दो ही हैं तो कदरे इत्मीनान बख्श बात है, मगर इनके पास हथियार दिखाई न देना तशवीशनाक है। इसका मतलब है कि इनके कब्जे में आतिशी हथियार हैं, जिन्हें इस इत्मीनान के साथ लिबास में छुपाया जा सकता है कि जरूरत पड़ने पर पलक झपकते में निकाल लिया जाए। इससे इम्कान बढ़ गया है कि ये दोनों महकमा खुफिया के एजेंट हैं, क्योंकि मकामी चोर उचक्कों और नकबजन वगैरह में से बहुत कम आतिशी हथियारों तक रसाई रखते हैं। मैंने दूरबीन दोबारा इफ्तिखार साहब को थमाते हुए कहा, अगर ये वाकई खुफिया के कारिंदे हैं सरकार, तो ये बात यकीनी है कि ये आपका ताकुब करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरा ख्याल है आपकी यहाँ आमद से आगाह होने के बाद अपने बड़ों को इत्तला देने की बजाय बंगले में घुसना इन दोनों की अजीम हिमाकत है और इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। अब आप तज्जिया करें कि ये कहाँ से आपके पीछे लगे हैं। मेरी बात सुनकर इफ्तिखार महमूद चंद सानियों के लिए खामोश हो गए, फिर तशवीश भरे लहजे में बोले, तुम्हारी बात में वजन है भैया, मगर ये बात भी काबिल गौर है कि ये कहाँ से मेरे पीछे लगे हैं, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से इंतहाई कारामद तरकीब लड़ाकर अपनी क़यामगाह से निकला था। उन्होंने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा, यूं लग रहा है कि ये दोनों फैसला नहीं कर पा रहे कि बंगले की इमारत में घुसने की कोशिश करें या मेरी वापसी का इंतजार करें, मगर मुझे पता है ये आखिरकार अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। ऐन उसी वक्त असलम अली ने मुदाखलत की, बोला, अगर ये अंदर घुस जाएं तो इनसे निपटना कोई मुश्किल नहीं सर जी। आप ये बताएं आप कौन सी तरकीब लड़ाकर अपने घर से यहाँ पहुँचे हैं। इफ्तिखार महमूद ने दूरबीन उसे थमाते हुए बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा, कोई खास नहीं यार, मेरा सुबह वाला ड्राइवर 2 दिन से शिकायत कर रहा था कि गाड़ी मिसिंग कर रही है, उसकी सर्विस करवानी पड़ेगी। वो आज ड्यूटी खत्म करके गया तो मैंने शाम वाले ड्राइवर से कहा कि रात का खाना खाने के बाद गाड़ी मैकेनिक की दुकान पर सर्विस के लिए छोड़कर तुम आज छुट्टी कर लेना। मैं कल टैक्सी के जरिए दफ्तर चला जाऊंगा और दिन वाला ड्राइवर शाम को वर्कशॉप से गाड़ी लेकर दफ्तर आ जाएगा। इतना कहकर वो गोया किसी सोच में डूब गए। मैं अपने आप पर काबू न पा सका। कहा, ये तो साफ जाहिर है कि ये शाम वाला ड्राइवर भी खुफिया वालों का कारिंदा होगा। इफ्तिखार साहब ने इस बात में सर हिलाकर बात आगे बढ़ाई, बोले, वो तो साफ जाहिर है। अच्छा, तो ड्राइवर के खाने और चाय से फारिग होने तक मैंने अपनी शक्ल सूरत और हुलिया बदला और गैराज में जाकर गाड़ी की डिग्गी में छुप गया। कुछ देर के बाद ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा मेरे मैकेनिक के गैराज पर ले जाकर खड़ी कर दी। अंधेरा होने से पहले ही गैराज बंद हो गया, मगर मैंने इंतजार किया और रात होने के बाद डिग्गी से निकला। मैंने अच्छी तरह जायजा ले लिया था, वहाँ किसी ने मुझे नहीं देखा था। मैंने कहा, आपने घर छुपकर निकलने की निहायत सीधी सादी मगर उम्दा तरकीब इस्तेमाल की है सरकार। मेरे ख्याल में तो आपके उनकी नजरों में आने का इम्कान बहुत कम होना चाहिए। इफ्तिखार साहब ने फिक्रमंद लहजे में कहा, मैं यही तो समझ नहीं पा रहा, क्या ये खबीस लोग घर के गैराज में मेरी गाड़ी की डिग्गी में छुपते ही वाकिफ हो गए थे? इस सवाल का जवाब ढूंढना। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल कर पाते, असलम ने मुस्तरिब लहजे में कहा, वो दोनों बंगले की तरफ बढ़ रहे हैं सर। इफ्तिखार महमूद साहब ने अपने लहजे को हिजान से पाक करने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए कहा, अब इनसे निपटने के अलावा कोई रास्ता नहीं। हमें इन्हें इस तरह काबू करना होगा कि इन्हें भाग निकलने का मौका न मिल सके, मगर हमें ये ख्याल भी रखना चाहिए कि ये दोनों मरने न पाएं। मैंने कहा, सर आपने जो कहा वैसा ही होगा, मगर थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें कि इन्हें पकड़ने के बाद हमारी हिकमत अमली क्या होगी। इफ्तिखार साहब ने गंभीर लहजे में कहा, इन्हें ठिकाने लगाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम इन्हें वापस जाकर अपने सीनियर्स को यहाँ का सारा हाल बताने का मौका नहीं दे सकते। मेरा ख्याल है ये मेरा ताक़ुब करते करते यहाँ तक पहुँच तो गए हैं, मगर इन्हें अपने ऊपर वालों को बताने का मौका नहीं मिला होगा कि ये कहाँ पहुँच गए हैं। अगर हम इन्हें काबू कर लेते हैं तो पहले हमें इनकी जबान खुलवानी होगी कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, इन्हें मेरे गाड़ी की डिग्गी में छुपे होने का कैसे पता चला और ये मजीद क्या क्या जानते हैं। तभी असलम अली ने कदरे मुस्तरिब लहजे में कहा, वो दोनों बंगले के सामने वाले हिस्से की तरफ जा रहे हैं, इजाजत दें हम दोनों जाकर उनकी गर्दन दबोच लें। इफ्तिखार साहब ने मजबूत लहजे में कहा, नहीं, फिलहाल इन्हें टामकटोइयां मारने दें। बंगले की जमीनी मंजिल के सब दरवाजे मुकफ्फल हैं, इन्हें बिलाखिर इसी तरफ आना पड़ेगा। हम इन्हें राहदारी में अचानक घेरेंगे। खुली जगह पर इन्हें अपनी तरफ बढ़ने की सुनगुन मिल गई तो वो बेदरेग गन इस्तेमाल कर सकते हैं। भला इन्हें गोली चलाने में किस बात की हिचकिचाहट या रुकावट होगी। हमें कोई गोली लगे या न लगे,
हम बंगले के अहाते में अंधाधुंध फायरिंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। धमाकों की आवाजें रात के सन्नाटे में मीलों मील सुनाई देंगी और चंद मिनटों में पूरी बंबई की पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी। इफ्तिखार महमूद की बात में वजन था, मगर इस दौरान में मेरा जहन बरक रफ्तारी से सूरत हाल के तज्जिये में मसरूफ था और मैं अलग अलग अंदाज में दोनों दरअंदाजों से निमटने के तरीके सोच रहा था। तभी मैं एक नतीजे पर पहुंच गया और मैंने बिला तवक्कुफ इफ्तिखार साहब को मुखातिब किया। कहा, सर आप दुरुस्त कह रहे हैं कि खुली जगह पर खतरा है कि इन्हें अपने ऊपर जलगार की सुनगुन मिल जाएगी, मगर मेरा ख्याल है यहाँ बैठकर इनके आने का इंतजार भी मुनासिब नहीं। हमें इनके इस्तकबाल की बेहतर तैयारी करनी चाहिए। इफ्तिखार महमूद ने कहा, जरा वजाहत से बताओ तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा, देखें फिलहाल ये दोनों एक साथ ऊपर आ जाते हैं तो हम इन दोनों पर एक साथ धावा बोलने की कोशिश करेंगे। हम इंशाल्लाह पहले ही हल्ले में इन्हें मार गिराएंगे, मगर ये भी तो मुमकिन है कि किसी वजह से इनमें से किसी एक पर हमारा वार कारी साबित ना हो सके और वो यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाए। वो जीने से उतरकर अहाते में पहुंच गया तो उसे पकड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे अंधेरे की चादर मयस्सर होगी, जबकि वो पकड़े जाने का खतरा महसूस करके चीखने चिल्लाने और वावेला मचाने से भी गुरेज नहीं करेगा। हो सकता है अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दे। इफ्तिखार साहब ने मेरी बात तहम्मुल से सुनी और कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मगर तुम इस खतरे के तदारुक के लिए क्या करना चाहते हो। मैंने कहा, मेरी राय में मुझे इन दोनों के जीने की तरफ आने से पहले नीचे जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि मैं इनकी नजरों से बाआसानी महफूज रह सकता हूँ। वो जैसे ही जीना चढ़कर राहदारी में दाखिल होंगे, मैं खामोश कदमों से इनके पीछे पीछे ऊपर पहुंच जाऊंगा। फिर आप दोनों उधर से इन पर टूट पड़ना और मैं पीछे से इन पर हमला करूंगा। इस दो रुखी जलगार से वो दोनों वैसे ही हवास बाख्ता हो जाएंगे। इफ्तिखार साहब ने बिला तवक्कुफ कहा, तुम ठीक कह रहे हो, तुम नीचे जाओ, मगर दो बातों का ख्याल रखना। एक तो इन्हें तुम्हारी मौजूदगी का आखिर तक पता न चले, और दूसरा ये कि इन्हें गोली चलाने की मोहलत नहीं मिलनी चाहिए। एक और बात का हम तीनों को ख्याल रखना है, हमारे वार इतने कारी न हो कि ये दोनों ही मर जाएं। इन दोनों में से कम एक का जिंदा रहना जरूरी है। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी हिदायत पर पूरा अमल करूंगा। उसके बाद मैं तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर झांका कि कहीं हमारे दुश्मन इस दौरान में सर पर तो नहीं पहुंच गए। राहदारी में तारीकी के साथ मुकम्मल सन्नाटा था। मैं अपनी यादाश्त के सहारे कदम बढ़ाता राहदारी से गुजरकर जीने के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। मैंने अहाते में फैले अंधेरे में घूर घूर कर दरअंदाजों को तलाश करने की कोशिश की। मेरे कान भी पूरी मुस्तैदी से कोई आहट सुनने की कोशिश कर रहे थे। बज़ाहिर आसपास कोई नहीं था। मैं तेजी से लेकिन बेआवाज कदमों से मोटे चोबी जीने से उतरने लगा। मेरी आंखें और कान बदस्तूर पूरी सलाहियत के साथ अपना काम कर रहे थे। जीने से उतरकर मैंने एक बार फिर इर्द गिर्द का जायजा लिया। मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। अब मुझे ये फैसला दरपेश था कि मैं दरअंदाजों की नजरों में आने से बचने के लिए बंगले के सामने वाले हिस्से की तरफ जाऊं या अकबी समत। मेरे पास सोचने के लिए चंद लम्हों की ही मोहलत थी। मैंने देर न लगाई और तेजी से बंगले की इमारत से दूर हटकर चार दीवारी की तरफ बढ़ने लगा। लगभग 25 कदम फासला तय करके मैं ठहर गया और फिर जीने की तरफ रुख करके सीने के बल जमीन पर लेट गया। मेरे लिबास की रंगत काफी गहरी थी और मुझे यकीन था कि अंधेरे में मुझे देखना मुमकिन नहीं होगा। बरेटा मेरे हाथ में था, ताहम मैंने तहैया कर रखा था कि फायर करने से हर मुमकिन गुरेज करूंगा और ऐन वक्त पर ही उसे कॉक करूंगा। उसके बाद आसाब शिकन इंतजार शुरू हुआ। मेरी आंखें अंधेरे में घूरते घूरते कुछ ही देर में दर्द करने लगी। मैंने चंद लम्हों के लिए आंखें मूंद ली। ऐन उसी वक्त मेरे कानों ने हल्की सी सरसराहट और खटपट सी सुनी। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी और घूर कर सामने की तरफ देखने लगा। मुझे बंगले की इमारत के अकबी हिस्से की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते दो धुंधले हयूले देखने के लिए खासी कोशिश करनी पड़ी। वो दोनों बज़ाहिर बंगले की इमारत का बगौर जायजा लेते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। जैसा कि हमने अंदाजा लगाया था, वो दोनों जल्द ही जीने की तरफ मुतवज्जे हो गए। मैं देख रहा था कि वो कुछ हट कर गालिबन आपस में मशवरा कर रहे हैं। इतनी बराए नाम रोशनी में अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उनके हाथों में पिस्तौल या रिवॉल्वर मौजूद है या नहीं। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरे इस्तराब में इजाफा हो रहा था। मुझे यकीन था कि कुछ ही देर में ये दोनों जीना चढ़कर राहदारी में दाखिल होने का फैसला करेंगे, क्योंकि वो दोनों बंगले की इमारत के तीन अतराफ का जायजा लेकर यहाँ पहुंचे थे और उन्हें बंगले में दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं मिला था, जबकि वो बखूबी जानते थे कि वो दोनों अफराद यकीनी तौर पर बंगले में दाखिल हुए हैं, जिनके ताकुब में वो चार दीवारी फलांग कर अंदर दाखिल हुए हैं। तभी मैंने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर मैं चौंक उठा। दोनों हयूलों में से एक जीने की तरफ बढ़ने लगा, जबकि दूसरा वहीं खड़ा रहा।
उन दोनों की तरफ से ये हरकत हैरान कुन नहीं थी, बस इतना था कि हमने इस इम्कान पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। ताहम अब मुझे अपने मंसूबे में फौरी तब्दीली लाने की जरूरत थी।